رمضان المبارک کی آمد پنجاب میں نگہبان دسترخوان مریم کے مہمان پروگرام کی تیاریاں مکمل۔ نگہبان دسترخوان پروگرام پر 6 ارب روپے کے اخراجات کا تخمینہ۔ پنجاب حکومت کی روزے داروں کے لیے افطار پر 6 ارب کے اخراجات کی منظوری دی گئی ہے۔ 10 لاکھ افراد نگہبان دسترخوان سے مستفید ہو سکیں گے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے علی رامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی رامی بتائیے۔ ماہ رمضان کی آمد ہے اور حکومت کی بھی تیاریاں مکمل ہیں، اور اس کے لیے پنجاب حکومت کی طرف سے کچھ بجٹ جو ہے وہ اپروو اب باقاعدہ کر دیا گیا ہے۔ اس میں سب سے جو اہم پروگرام ہے وہ تو یہ ہے کہ رمضان میں نگہبان جو کارڈ ہے وہ تقسیم کیا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت اب نگہبان دسترخوان جو مریم کے مہمان کے نام سے پروگرام ہے وہ بھی شروع کر رہی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پنجاب کی ہر تحصیل کے اندر دسترخوان جو ہے وہ قائم کیے جائیں گے، اور اس کی ذمہ داری متعلقہ انتظامیہ کی ہوگی۔ اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ اپنی تحصیل کے اندر اس کے ذمہ دار ہوں گے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہے وہ ذمہ دار ہوگی۔ اب اس کے لیے جو بجٹ کا تخمینہ تھا وہ لگایا گیا ہے۔ اس کے لیے 6 ارب روپے سے زائد کی ایک رقم وہ حکومت نے باقاعدہ منظور کی ہے، جو ان دسترخوان کے اوپر باقاعدہ خرچ کیے جائیں گے روزہ داروں کے افطار کے لیے۔ اب اس میں ساتھ یہ بھی ایسٹیمیٹ لگایا گیا کہ 93 لاکھ افراد کے لیے انتظام جو ہے وہ حکومت کرے گی ایک مہینے کے اندر، یعنی کہ 93 لاکھ افراد وہ اپنا روزہ افطار کریں گے، حکومت کے وہ مہمان ہوں گے، تو یہ دسترخوان وہ پنجاب حکومت کی طرف سے قائم کیے جائیں گے۔ اور کچھ انتظامی طور پر اخراجات ہیں جو کہ 3.5 ارب روپے ہیں، وہ بھی اس بجٹ کا حصہ ہیں۔ تو مجموعی طور پر 49 ارب روپے حکومت اس ماہ رمضان میں خرچ کرے گی مستفید کو ان کی رقم پہنچانے کے لیے، اداروں کے افطار کے لیے۔ علی رامی بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے۔ وفاقی حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا ملبہ سولر سسٹم لگوانے والے صارفین پر ڈال دیا ہے۔ نیٹ میٹرنگ پروجیکٹ کی وجہ سے عام صارفین کے لیے 2 روپے 87 پیسے فی یونٹ اضافہ ہوا۔ ذرائع کا ایسا کہنا ہے 2 روپے 87 پیسے فی یونٹ کے حساب سے پورے پاکستان کے صارفین کے لیے بجلی مہنگی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے شاہد ندیم سپرا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، وفاقی حکومت کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا ملبہ سولر سسٹم لگوانے والے صارفین پر ڈال دیا گیا ہے۔ پی پی ایم سی کی جانب سے ایک بریفنگ نیپرا کو دی گئی ہے، جس میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ نیٹ میٹرنگ پروجیکٹ کے تحت جو صارفین کو کنیکشن دیے گئے اور ریلیف دیا گیا، اس کی وجہ سے پورے پاکستان کے عام جو صارفین ہیں جو سولر سسٹم استعمال نہیں کرتے، ان کے لیے 2 روپے 87 پیسے فی یونٹ کے حساب سے بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ اس لیے نیٹ میٹرنگ کو نیٹ بلنگ پر منتقل کرنے کے لیے ڈرافٹ تیار کیا گیا ہے، اور اس پر تجاویز طلب کی گئی ہیں کہ کمپنیز اور صارفین کے درمیان جو کنٹریکٹ ہوگا وہ 5 سال کے لیے ہوگا۔ ایکسپورٹ ہونے والے یونٹ کی قیمت 11 روپے فی یونٹ مقرر کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیٹ میٹرنگ کے تحت یونٹ کے ساتھ یونٹ کا ریلیف دیا جاتا ہے، اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ 2 روپے 87 پیسے بجلی کی قیمت میں عام صارف کے لیے اضافہ ہوا ہے، تو پاور ڈویژن کو 2 روپے 87 پیسے فی یونٹ کے حساب سے بجلی میں قیمت میں کمی کرنی چاہیے، جس پر وزارت پاور ڈویژن کے اعلیٰ افسران کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم اس مطالبے پر نظر ثانی کریں گے۔ لیکن یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وزارت پاور ڈویژن اور وفاقی حکومت سولر سسٹم کی نیٹ میٹرنگ پروجیکٹ کو ختم کرنا چاہ رہی ہے، اس کو نیٹ بلنگ پر منتقل کرنے کے بعد آئندہ صارفین کو کنیکشن دے کوششیں جاری ہیں۔ شاہد سپرا بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے۔ ٹریفک پولیس کی ایکسیڈنٹ ہاٹ سپاٹس رش والے علاقے تجاوزات کی نشاندہی۔ پنجاب میں 195 ایکسیڈنٹ ہاٹ سپاٹس، 470 رش والے ایریاز، 692 پوائنٹس پر تجاوزات قائم کر دیے گئے ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے علی ساہی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی ساہی آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ٹریفک کی روانی یقینی بنانے کے لیے حادثات کی روک تھام اور تجاوزات کے شاہراہوں پر خاتمے کے لیے ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب کی جانب سے لاہور سمیت پنجاب بھر میں گزشتہ ماہ ایک اہم منصوبہ شروع کیا گیا، جس میں 1 سٹی 1 روڈ کے تحت کام کیا جانا تھا، اور اس میں جو شاہراہیں پوائنٹ آؤٹ کی گئیں اور اس پر کام کیا گیا، وہاں سے حوصلہ افزا نتائج آئے۔ اس کے بعد ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب وقاص نذیر کی جانب سے لاہور سمیت پنجاب بھر میں مراسلہ بھجوایا گیا ہے کہ 192 ایسے ایکسیڈنٹ ہاٹ سپاٹس پوائنٹ آؤٹ کیے گئے ہیں جہاں پر زیادہ حادثات رونما ہوتے ہیں۔ 470 کنجیشن پوائنٹس ہیں جہاں پر ٹریفک کی روانی متاثر ہوتی ہے، اور اس کی وجوہات پارکنگ کی عدم دستیابی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سگنلز کا نہ ہونا اور ٹریفک وارڈنز کی ڈیوٹیوں پر موجود نہ ہونا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 692 تجاوزات لاہور سمیت پنجاب بھر میں پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہیں، جن کی وجہ سے ٹریفک کی روانی میں
शदीद मुतासर होती है। और ये तमाम चीज़ें हटाने के लिए DIG ट्रैफिक की जानब से तमाम RPOs, DPOs और DTOs को मरासला भिजवाया गया है कि वो मुतलका आला अफसरान के साथ मिलकर इस मंसूबे को मज़ीद शाहराहों तक फैलाएँ ताकि हादसात को कंट्रोल किया जा सके और जो ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है उसको बेहतर बनाया जा सके। इसके साथ साथ तजावज़ात का ख़ात्मा किया जाए। अगर किसी जगह पर फ़ंड्स दरकार हों तो डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक अफसर या CTOs जो हैं वो मुतलका अपने ज़िली अफसरान से फ़ंड्स लेकर वो मसाइल हल कर सकते हैं। अगर किसी महकमे के मुतलका है तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके इन तमाम चीज़ों को क्लियर किया जाए ताकि पंजाब भर में हादसात पर काबू पाया जा सके और ट्रैफिक की यकीनी बनाई जा सके। अली साही, आगाह करने के लिए शुक्रिया। LDA शोबे टाउन प्लानिंग की ज़ेर सरपरस्ती गैर कानूनी तामीरात धड़ल्ले से जारी। ऐवान वज़ीर आला सेक्रेटरी हाउसिंग की मुतादिद वार्निंग के बावजूद गैर कानूनी तामीरात जारी हैं। LDA हुकाम का जोर ब्यूटिफिकेशन और तरक्याती कामों की जानिब है। टाउन प्लानिंग ने नक्शे के खिलाफ वर्जियों, गैर कानूनी इमारतों पर चुप सान ली है। इस पर बात करने के लिए दुर्र नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्र नायाब, आगाह कीजिए। बिल्कुल, ऐवान वज़ीर आला की मुतअद्दिद वार्निंग्स और सेक्रेटरी हाउसेस के मुतअद्दिद नोटिस के बाद इवन के बहुत सारे अफसरान को मुअत्तल किया गया, लेकिन LDA शोबा टाउन प्लानिंग ने गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला रोका नहीं, बल्कि देखा जाए तो बढ़ता जा रहा है। और ऐसी सी प्राइम रोड को टारगेट किया जा रहा है जो इससे पहले नहीं थी। इससे पहले होता यह था कि गली मोहल्लों में आबादियों के अंदर घरों को कन्वर्ट करवाया जाता था और प्लाजा या दुकानें खड़ी बना दी जाती थी, लेकिन अब मेन रोड पे खुल्लम खुल्ला धड़ल्ले के साथ तामीरात जारी है। अगर बात की जाए सदर बाईपास पर शौकत खानम अस्पताल से बिल्कुल मुतसिल एक प्लॉट पे गैर कानूनी कैफे खड़ा करवा दिया गया और रातों रात उसकी तामीरात कराई गई हैं। स्टील स्ट्रक्चर में प्रॉपर बनाया गया है, ना कोई नक्शा, ना कोई कमर्शियल फीस, ना किसी चीज की आमदन, ना कोई रेवेन्यू, और इस तरह धड़ल्ले के साथ इससे पहले देखने में नहीं आता था। इसी तरह जो PIA रोड है उसके अंदर बहुत सारी इमारतों को कन्वर्ट किया जा रहा है। नक्शे किसी चीज के मंजूर कराए गए हैं, बन कुछ रहे, और या तो गैर कानूनी तामीरात करवा कर चार दीवारी करा के प्लॉट को कवर करा के मार्बल शोरूम, टाइल शोरूम और दीगर इस तरह की इमलाक खुलवाना मामूल बन चुका है। इससे ना तो सिर्फ हुकूमत पंजाब LDA का रेवेन्यू लॉस हो रहा है, बल्कि जो जायज काम करने वाले कारोबारी हजरात हैं उनकी भी हौसला शिकनी की जा रही है और गैर कानूनी तामीरात, गैर कानूनी माफिया बहुत हद तक अपनी जड़ें बना चुके हैं LDA के अंदर, जिनको रोकना अब LDA के लिए नामुमकिन होता जा रहा है। बल्कि ज़राए के मुताबिक कुछ अफसरान जो हैं वो बाकायदा उनको शेल्टर दे रहे हैं, मुलाजमीन शेल्टर दे रहे हैं, और ये सिलसिला थमने को नहीं आ रहा है। जी, QR कोड और रास्त अदायगी न होने से शफाफियत के दावे सवालिया निशान बन गए। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी अपने ही नोटिफिकेशन पर अमल दरामद करवाने में सुस्त, कई कारोबारी इदारे QR कोड अदायगी से महरूम हो गए हैं। कलीम अख्तर इस पर तफसीलात जानेंगे, उनसे जानेंगे। कलीम, बताइएगा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी सैकड़ों रेस्टोरेंट्स, होटल्स और इसके अलावा जो ब्यूटी सैलून्स हैं उसमें डिजिटल अदायगी के निज़ाम को नाफिज नहीं कर सकी है, जबकि लाहौर समेत पंजाब भर में सैकड़ों ऐसे कारोबारी अदारे हैं जो कि ताहाल QR कोड और जो रास अदायगी के बगैर काम कर रहे हैं, और जो दावा किया गया था शफाफियत के हवाले से वो खुद भी एक सवालिया निशान बन चुका है। जबकि इस हवाले से बताया गया है कि लाहौर समेत पंजाब भर में सैकड़ों की तादाद में न सिर्फ ऐसे रेस्टोरेंट्स, होटल्स हैं, बल्कि इसके अलावा ब्यूटी सैलून्स भी हैं जिनके हवाले से ये दावा किया गया था कि वो तमाम की जो अदायगी है वो QR कोड और रास होगी, जबकि इसको यकीनी नहीं बनाया गया है। जबकि इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से जनवरी में नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें तमाम ऐसे रेस्टोरेंट्स और होटल्स और ब्यूटी सैलून्स जिनको पाबंद बनाया गया था कि अब जो अदायगी है वो डिजिटल होगी, लेकिन वो अदायगी डिजिटल ताहाल नहीं हो सकी है और 2 हफ्तों की डेडलाइन गुजरने के बावजूद भी जो सूरत हाल है वो जो की तू है। जबकि इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि सार्फिन अब भी जो हैं वो नकद अदायगी करने पर मजबूर हैं और जो डिजिटल सहूलत है वो नापैद हो चुकी है। जबकि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की हदायत को न सिर्फ नजरअंदाज किया जा रहा है, बल्कि इसके अलावा जो अमल दरामद है उसके लिए जो मॉनिटरिंग है वो भी मौसर नहीं हो सकी है। जबकि इसके अलावा शहरियों ने मुतालबा किया है कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी अपने ही नोटिफिकेशन पर जो अमल दरामद है वो यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ इकदाम उठाए, बल्कि इसके अलावा ऐसे रेस्टोरेंट्स और ऐसे मार्केट्स और इसके अलावा दीगर जो भी कारोबारी अदारे हैं जो कि डिजिटल अदायगी नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई मौसर अंदाज में की जाए। जी, कलीम अख्तर, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बल्दियात को 20 फरवरी को दोबारा तलब करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से महकमे बल्दियात को आगाह कर दिया है। पंजाब हुकूमत हदबंदियों में सुस्ती दिखा रही है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। कैसे खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे खोकर बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 20 फरवरी को
चीफ सेक्रेटरी पंजाब को और सेक्रेटरी बल्दियात को जो है तलब करने का फैसला किया है, क्योंकि पंजाब हुकूमत हदबंदियों में सुस्ती का रवैया का इख्तियार कर रही है और अभी तक काबीना ने हदबंदियों के जो रूल्स हैं और हदबंदियों की जो उसकी डिमार्केशन है वो उसकी मंजूरी नहीं दी, जिसकी वजह से बल्दियाती इलेक्शन का अमल जो है वो सुस्त रवि का शिकार हो गया है। और इस वाले से इलेक्शन कमीशन बार बार चीफ सेक्रेटरी पंजाब को और सेक्रेटरी बल्दियात को बुला रहा है और बार बार ये फोर्स इस बात पर कर रहा है कि जल्द अज जल्द जो हदबंदियाँ और हल्का बंदियाँ का अमल किया जाए मुकम्मल, ताकि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन जल्द कराया जा सके। लेकिन अभी तक पंजाब हुकूमत जो है वो सीरियस शो नहीं कर रही, जिसकी वजह से बार बार इलेक्शन कमीशन जो है वो चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बल्दियात को तलब कर रहा है। जी कैसे होकर बहुत शुक्रिया। पंजाब में 30,000 SST असातिज़ा को 20 साल से तरक्कियाँ न मिलने का इंकशाफ। मज़कूरा असातिज़ा को सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और बतौर हेड मास्टर तरक्कियाँ दी जानी है। बर वक्त प्रमोशन न मिलने से SST असातिज़ा बगैर प्रमोशन मिले रिटायर हो जाते हैं। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे जुनैद रियाज से। जुनैद बताइएगा। जी, पंजाब भर में 30,000 SST असातिज़ा जो कि सीनियर स्कूल टीचर हैं वो 20 साल से तरक्कियों से महरूम हैं और ऐसे SST असातिज़ा भी हैं जो बग़ैर प्रमोशन लिए जो है वो रिटायर हो जाते हैं। इस हवाले से जो पंजाब टीचर यूनियन और जो पैक्ट पंजाब के सदर हैं काशिफ शहजाद चौधरी, उन्होंने मुतालबा किया कि जो SST असातिज़ा हैं उनको फ़ौरी तौर पर जो है तरक्कियाँ दी जाएँ। और उनका कहना है कि हज़ारों की तादाद में बतौर हेड टीचर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सीटें खाली पड़ी हैं, लेकिन असातिज़ा को जो है वो प्रमोशन नहीं दी जा रही। और उन्होंने मुतालबा किया कि फ़ौरी तौर पर इन ग्रेड 16 के असातिज़ा को ग्रेड 17 में तरक्की दी जाए, ताकि जो असातिज़ा हैं वो अपनी ज़िंदगी में तरक्कियों को इंजॉय कर सकें। लेकिन महकमा स्कूल एजुकेशन की सुस्ती की वजह से ये प्रमोशन नहीं दी जा रही और इस हवाले से अथॉरिटीज़ को फौरी तौर पर हदायत की जाए कि असातिज़ा को जो कि SST के अहदे पर भर्ती हुए हैं उनको तरक्कियाँ दी जाएँ, ताकि स्कूलों में शॉर्टेज जो है वो असातिज़ा की पूरी की जा सके। इस हवाले से काशिफ शहजाद चौधरी का कहना है कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं होते तो वो भरपूर एहतजाजी मुजाहरा भी करेंगे और वो तमाम असातिज़ा जो कि जिनको तरक्कियाँ नहीं मिल रही वो उनके साथ इस एहतजाज में। जी जुनैद, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। सूबा भर में मजमूई तौर पर 38 डिप्टी डायरेक्टर्स कॉलेजेस तैनात किए गए। महकमा हायर एजुकेशन ने तकर्रियों का बाकायदा ऐलान कर दिया। नई तैनातियों से कॉलेजेस इंतज़ामी उमूर में बेहतरी की तवक्को है। असातिज़ा की जानिब से कहा गया। लाहौर डिवीजन में 3 डायरेक्टर कॉलेजेस की तैनाती भी कर दी गई है। इमरान यूनिस से तफसीलात जानेंगे। इमरान यूनिस बताइएगा। जी, लाहौर समेत सूबे भर में डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज की तैनातियां कर दी गई हैं। मजबूरी तौर पर 38 डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज की तैनातियां सूबे भर में की गई हैं। मुतलका अफसरान की तैनाती 3 साल के लिए की गई है। नई तैनातियों से मुतल्लिक महकमा एजुकेशन ने नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया है और जो साजा हैं उनके मुताबिक मुतलका अफसरान की तैनातियों से कॉलेज के जो मामलात हैं उनमें मजीद बेहतरी आएगी। और इन असामियों के हवाले से बात की जाए तो ये असामियाँ एक अरसे से खाली थी, जबकि लाहौर डिवीजन में 3 नए डायरेक्टर कॉलेजेस की तैनातियाँ भी कर दी गई हैं। मुतलका जो अफसरान हैं इनकी तैनातियाँ तो मुश्किल बुनियादों पर 3 साल के लिए की गई हैं, लेकिन महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से जून में इनकी कारकर्दगी को जांचा जाएगा और जो बेहतर कारकर्दगी के हामिल अफसरान नहीं होंगे उनका टेन्योर एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। इस हवाले से महकमा हायर एजुकेशन ने बजरिया नोटिफिकेशन तमाम नए डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज आगाह कर दिया है। इमरान यूनिस, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं 2 दहाइयों बाद होने वाला बसंत का त्यौहार अरबों रुपए की आमदन दे गया। मजमूई तौर पर लाहौर में बसंत पर 20 अरब रुपए से ज़ायद का कारोबार हुआ। पतंगों और डोर की खरीदो फरोख्त कीमत में 2 अरब रुपए से ज़ायद का कारोबार हुआ। शहजाद खान अब्दाली से तफसीलात जान लेते हैं, बताइएगा। तकरीबन लाहौर शहर में 2 दहाइयों के बाद बसंत का ये त्यौहार मनाया गया और 3 दिन का ये त्यौहार था। 3 दिन के इस त्यौहार में लाहौर में मजमूई तौर पर एक मुताद अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 20 अरब रुपए से ज़ायद का बिजनेस जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के मुताबिक डोर और पतंगों की खरीदारी की मद में तकरीबन 2 से 3 अरब रुपए का बिजनेस जो है वो देखा गया। और इसके अलावा पोल्ट्री एसोसिएशन लाहौर के मुताबिक 1 अरब 60 करोड़ रुपए की जो चिकन का गोश्त था वो लाहौरियों ने खाया और इसके अलावा जो सप्लाई थी लाहौर शहर से मुख्तलिफ शहरों से वो भी लाहौर शहर के अंदर आई।
تو کہا جا سکتا ہے کہ تقریباً 2 ارب روپے سے زائد کا چکن گوشت جو ہے وہ فروخت کیا گیا۔ اس کے علاوہ لاہور ہوٹل اینڈ ٹورزم ایسوسی ایشن کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ لاہور شہر میں تقریباً 1000 ہوٹل ہیں اور تقریباً 50,000 کے قریب جو ہیں وہ اس میں کمرے ہیں۔ تمام کمرے جو ہے وہ بک رہے ہیں، ایون کہ ہوٹل سیکٹر کو اپنے ڈرائیوروں، میٹنگ روم اور کانفرنسز روم جو تھے وہ بھی کرائے پر دینا پڑے۔ تو مجموعی طور پر تمام سیکٹر کا ملا کے تقریباً 20 ارب روپے سے زائد کا بزنس جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اور آج شام کو اس حوالے سے کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن ایک اہم پریس کانفرنس بھی کرنے جا رہی ہے، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا شکریہ ادا بھی کیا جائے گا۔ ایک بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو فاسٹ فوڈ کے بزنس سے ریلیٹڈ ہیں۔ بردر بتائیے گا 3 دن میں فاسٹ فوڈ کا بزنس کیسا چلا ہے؟ 3 دن میں فاسٹ فوڈ کا بزنس تو بہت اچھا چلا ہے۔ ہمیں آرڈرز آ رہے تھے، کافی زیادہ ڈیلیوریز بھی ہوئی ہیں، اور بہت زیادہ لوگ تو اس طرح ٹیک اوے آرڈر لینے آ رہے تھے کہ جیسے وہ چھتوں پہ اڑا رہے ہیں پتنگے، اور ایک آدھے لڑکے کو بھیج دیا کہ جا کے وہ سب کے لیے فاسٹ فوڈ لے کے جائے۔ ہمارے پیزے اور برگر وغیرہ وہ بہت زیادہ نکلے ہیں یہاں پہ، تو اس حوالے سے تھوڑی رننگ بھی رہی ہے۔ ہمارا کام ہمیں وہ بہت زیادہ محنت سے کرنا پڑا ہے۔ ہمارا انفیکٹ اپنا بھی ارادہ تھا تھوڑا بہت بسنت منانے کا، لیکن ہمیں ٹائم ہی نہیں مل سکا اس حوالے سے۔ ان لوگوں کو خود بسنت منانے کا، تہوار منانے کا موقع نہیں مل سکا کیونکہ آرڈر اتنے زیادہ تھے، ڈیلیوریاں اتنی زیادہ تھیں کہ ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا کہ اپنا سر بھی کھجا پاتے۔ اس لیے لاہور شہر کے اندر تقریباً 20 ارب روپے سے زائد کا بزنس ان 3 دنوں کے اندر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ شہزاد بہت شکریہ۔